A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, today, first of all, I would like to congratulate to all of you that I am pretty much impressed with your performance in mathematics because whosoever is attending the classes and sending their homeworks, almost all of you are correct while solving the question answers, while solving those questions. So I believe that you are pretty much familiar with this NCRT and all. And today I have taken some decision kind of that I will teach some of the basics of this chapter, and based on those basics, if you get clear, like if you get clear with if you get your doubts and the concepts clear from the basics, then I'll send you some homeworks from the other reference books as well, from R.D. Sharma, from R.S. Agrawal, and from other books as well, so that you may increase your question range and the variety of questions. So you all have done this exercise 2.4, but I found that just a few of you faced some problem in exercise 2.5. So in order to do exercise 2.5, exercise 2.5 is actually totally based on these algebraic identities. And yes, one more thing, I teach some students in my institute. So since I take some extra classes to them as well from various schools, so I come across most of the students who say this algebraic expression or identities as algebraic. वो स्टूडेंट्स, मैं अपने जो इंस्टीट्यूट पे क्लासेस लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ, तो उन लोगों का था कि सर algebraic होता है. देन आई टोल्ड देम दैट प्लीज ओपन योर बुक एंड रीड एंड स्पेल इट फॉर मी. सो दे सेड दैट सर यस, ये algebraic होता है. इट इज़ नेवर algebraic, it is algebraic. Okay. So if I talk about these algebraic identities, there are some identities that you have already known from your previous classes, but in this class there are some other new identities as well, and based on those identities you will be solving the questions of exercise 2.5. So these four identities, if I talk about, whole square of x plus y is x square plus 2xy plus y square. Whole square of x minus y is x square minus 2xy plus y square. Then x square minus y square is x plus y, x minus y, and x plus a into x plus b is equal to x square a plus bx plus ab. X square a plus bx plus ab. So you must have also used some of these algebraic identities to factorize the algebraic expression. You can also see their utility in computations. So here find the following products using appropriate identities. तो अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट निकालना है, we have to find the answers with the help of identities only. So if it is written something like this, x plus 3 into x plus 3, right? So this is nothing but whole square of x plus 3, and if you know the whole square of x plus 3, the answer would be x square plus 2xy, is it, plus y square. It further becomes 6x. Moreover, if you look on this identity, x plus 3 into x plus 3, सो इस आइडेंटिटी का मैं फिर से लिख देता हूँ, x प्लस 3 एंड x प्लस 3. सो क्या ये आइडेंटिटी, डज दिस आइडेंटिटी
not resemble like this x plus a and x plus b. So some of you will say कि yes sir ये resemble कर रहा है, and some of you will say कि सर resemble नहीं कर रहा है. क्लियर? तो देखो बच्चों resemble कर रहा है, बस इतना सा बात है कि a is equal to b which is equal to 3. a b यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है as per the formula, बट ये थोड़ी ना है कि डिफरेंट हो सकता है तो सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम हो सकता है. क्लियर? सो ऐसे आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है आपके सामने बताओ, लिखा हुआ है. बताओ बेटा क्या फॉर्मूला है. द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो देखो एक्स स्क्वायर लिखोगे, ए प्लस बी यानी 3 + 3 कितना हो गया 6x प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस ए बी मतलब 3 × 3 कितना हो गया 9. तो देखो इसको आपको एक कम स्टेप में हो गया. मैं आपके लिए फिर से इसको लिखता हूँ, अब देखना मेरे साथ, ठीक है ना. मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर होगा, देन ए प्लस बी तो 3 + 3 यानी 6x होगा, देन ए इंटू बी यानी 3 × 3 9 होगा. क्लियर? सेम इज हेयर इन दिस केस x - 3 and x + y x + 5. तो फॉर्मूला सेम चीज़ है, वही लगाना आइडेंटिटी. तो पहले का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा a प्लस बी इंटू एक्स. अब यहाँ पे साइन बाहर तो प्लस का लगाओगे, लेकिन जब आप -3 + 5 करोगे तो क्या आएगा +2x आ जाएगा. और ए बी करोगे तो -3 × 5 क्या होगा -15 होगा. क्या आ गया इसका आंसर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15. ठीक है. अच्छा, लेट्स लुक एग्जाम्पल नंबर 17. So 105 into 106. 105 into 106 is what? It is nothing, but this is 105 can be written as 100 plus 5. So basically क्या लिखा जा रहा है ये 100 plus 5 into 100 plus 6. अब देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता तो देखें देखो कितना टीडियस टास्क हो जाता है ये, कि आप 105 को ऐसे मल्टीप्लाई करते 106 से और ऐसे लिखते रहते 6 × 5 = 30, देन 6 × 1 = 6, देन ये 2 बार 0 आता, 3 टाइम्स 0 आता सॉरी, देन 5 0 1 एंड फाइनल आंसर वुड हैव बीन 0 3 1 1 1. कितना टीडियस टास्क हो गया. ठीक. बट अगर आप इसी को ब्रेक कर दिए 100 + 5 इंटू 100 + 6, तो अब ये स्टूडेंट्स आपका क्या बन गया, ये बन गया x + a इंटू एक्स प्लस बी. तो x का स्क्वायर क्या होता है, मतलब x का स्क्वायर करना होता है फॉर्मूले में, और क्या करना होता है a + b करना होता है. तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11x हो गया. और क्या करना होता है, और हम लोगों को करना होता है, अच्छा x तो नहीं करते ना सॉरी, x की जगह पे यहाँ पे 100 की वैल्यू रख देंगे ना. हाँ ठीक है. और क्या करना होगा ए बी करना होगा. तो 6 5 से कितना हो गया 30. सो हेयर दिस इज 10,000, दिस इज 1100. सो 10,000 + 1,000 11,100 एंड 11,100 के ऊपर क्या ऐड करना 30 ऐड करना. सो इट बिकम्स 11,030, 11,130. सो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ ईजी इट हैज़ बिकम. ये जो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 105 का, इसे मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से कि मैंने लिया 112 का मल्टीप्लाई हमें करना है लेट्स से 109 से. सो अगेन ये बड़ा टीडियस टास्क है, लेकिन अगर हम लोग इसको उसमें ब्रेक कर दें x + a और x + b में, तो देखो ये बहुत ईजी टास्क बन जाएगा. बताओ बच्चों ईजी टास्क बना या नहीं बना, देखो मेरे साथ बताओ बना कि नहीं बना. इसलिए बन गया क्योंकि 100 का स्क्वायर तो फिर से यही बन जाएगा 10,000. ठीक. 12 9 कितना होता है 108, और 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 12 9 108 हम लोग अलग से भी लिख देंगे. अच्छा थोड़ा सा फिर से देखो मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम. ये a + b होता है ना, तो 12 + 9 21 हो जाएगा, और 100 और ऐड हो जाएगा, और 12 9 कितना होता है 108 हो जाता है. सो 10,000 और 200 12,100 और 108 जोड़ेंगे तो 12,208 आ जाएगा.
ठीक है, लेट्स से अगर हमें यूज़ करना है, मान के चलो 85 का मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 89 से, ठीक है, 85 का मल्टीप्लाई करना है 89 से। सो कितना ईजी हो गया कि यू कैन राइट दिस 85 एज 80 प्लस 5 एंड यू कैन राइट दिस 89 एज 80 प्लस 9। सो 80 का स्क्वायर इज नथिंग बट 6400। 5 9 ज़ा 45 आप सॉरी 5 9 ज़ा 45 नहीं, फिर से वही मिस्टेक हो रही थी। 5 प्लस 9 14 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे 80 से, और देन 5 9 ज़ा 45 लिखोगे। तो 6400 प्लस 14 8 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स? 14 8 ज़ा होता है 112, राइट, 112, और एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11200 एंड सिंगल ज़ीरो एंड 45। तो दिस 6400 में हमने अगर 1000 जोड़ा तो इट बिकम्स 7400, देन 100 जोड़ा तो इट बिकम्स 7500, देन 65 जोड़ा इट बिकम्स 7565। सो हाउ ईजी इट हैज़ बिकम, clear? So this is the importance of the identity, this is the need of the identity. So now here are some new things that you have seen some use of the identities below, and here's example number 18. So factorize 49a square plus 17ab plus 25b square. So here you see that 49a square is nothing but 7a whole square of 7a, and into 25b whole square is 5 whole square of 5b, and then 70ab, then equal to 27ab. Can you see it or not? Can you see it or not? सी तो करना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा ना ये चीज़ की अगर हमने 7, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम लोग इसको 2 इंटू 7a इंटू 5b नहीं लिख सकते? और क्या 25b का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, क्या इसको हम लोग 5b का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। और अगर लगा सकते हैं तो हाउ विल वी फैक्टराइज इट? 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, या फिर 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है। यहाँ देखो आंसर आ गया 2 टाइम्स लिख के। सेम प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड इन दिस पार्ट 2 एज वेल, ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू दी आइडेंटिटी, ठीक है, coming to the identity. Here you can also see the derivation that so far all our identities involve products of binomials. Let us now extend the identity I to a trinomial x plus y plus z. We shall compute x plus whole square of x plus y plus z by using identity 1. So x plus y plus z whole square. So if I take x plus y as t, so it becomes t plus z ka whole square, and it becomes t square plus 2tz plus t square, and this t square is further becomes x plus y to the power z, x plus y to the power square plus 2xy. So after the complete solution, the final identity that comes is this x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, and here is the highlighted identity of identity number 5, that whole square of x plus y plus z is nothing but x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Clear? Now if I say that remark, we call the right hand side expression the expanded form of the left hand side expression. Note that expansion of x plus y plus z square consists of 3 squares and 3 square terms and 3 product terms. ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 3 स्क्वायर का टर्म है और 3 प्रोडक्ट का टर्म है, बस वही समझाने वाली बात है, कुछ ऐसा अलग सा नहीं है। सो हियर इन एग्जाम्पल 19, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कोई ऐसा कठिन सा काम तो है नहीं, बस खाली फॉर्म में पुट कर देना है। सो 3a स्क्वायर ये ऐसे हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, सोचो, ठीक है ना।
आइडेंटिटी 5 की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी 5 पे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स चले आ रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी 3 पे आते हैं, आइडेंटिटी 6 पे आते हैं। This is identity 6, that whole cube of x plus y. So it is nothing but x cube plus y cube plus 3xy and in bracket there is x plus y. जिसको हम लोग फर्दर ऐसे भी कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y²। ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हो तो आप ऐसे कहोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3y²। सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है। सो देन कम्स द आइडेंटिटी 7, x whole cube of x minus y, it becomes x cube minus y cube minus 3xy in bracket x minus y। ये भी करेक्ट है। और ऐसे भी कह सकते हो x क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब। दोनों ही अपनी पोजीशन पे करेक्ट है। जैसे आपको याद करना याद कर लो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि गो फॉर द सेकेंड वन, बिकॉज फर्स्ट वन तो आपको याद हो ही जाता है, बट अपने आप को हैबिचुअल बनाओ सेकेंड वन के लिए। जो नीचे ये लिखा हुआ है ना सेकेंड वन वाला, एक्स क्यूब माइनस, अब ये हमेशा याद रखना कि अगर माइनस है तो जो x² का टर्म होगा वो माइनस होगा और y² का टर्म प्लस होगा। एक्स क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब। क्लियर। एंड बेस्ड ऑन दिस देयर आर सम एग्जाम्पल्स 22, 23 एंड सो ऑन। ठीक है। जैसे ये है कि evaluate each of the following using suitable identities। अब जैसे देखो ये 104 टू द पावर, लेट मी जूम इट फॉर यू, 104 टू द पावर 3। अब 104 टू द पावर 3 को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू कि विल राइट 100 लाइक 100 प्लस 4, 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 देन 100 प्लस 4 आइडेंटिटी 6 को यूज़ करते हुए। तो 100 क्यूब का हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा ये 10 लाख। हाँ 10 लाख प्लस 64 प्लस 124800 एंड द फाइनल आंसर ऑन योर फ्रंट इज 1129 लाख 11,24,864। सो हियर इज द वे टू सॉल्व these questions and you can do this example as well by the factorization process। ठीक है। Moving further to the identity 8, this is one of the biggest or the important identity because ये हमेशा आपके काम में आने वाली है। आप हमेशा जो है इसको याद रखोगे। एंड पता है इसकी बहुत बड़ी खासियत क्या है कि दिस सीम्स टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट आइडेंटिटी, बट ये जितना डिफ़िकल्ट अपीयर होता है इसे लर्न करना उतना ही आसान होता है। लेट मी टेल यू वाई। देखो, if you see the left hand side of this identity, it says x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। सो ये अपने आप में किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन लगता है या नहीं लगता है। सो अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी होती जिसका एक्सपेंशन ये होता, सो मे बी इट वुड हैव बीन टीडियस टास्क फॉर यू टू मेमोराइज। थोड़ा सा ये टीडियस टास्क होता है मेमोराइज करना, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आपको एज एन आंसर याद करनी है अगर वो एज अ क्वेश्चन दे दी जाए, सो हाउ मच फैसिनेटिंग इट विल बी। जैसे आपके एग्ज़ाम में आपका जब ये हाफ ईयरली होगा, सो कुछ ऐसा हो आपके एग्ज़ाम में कि मैं बड़ा बड़ा आंसर आपके सामने, क्योंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ तो मैं बात कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश के पैराग्राफ्स होते हैं, आंसर्स होते हैं 1 पेज के या फिर 1.5 पेज के या फिर हाफ पेज के, मैं इतना बड़ा सा आंसर आपको दे दूँ, मैं पूछूँ कुछ और मैं आपसे पूछ लूँ कि इस आंसर का क्वेश्चन क्या है, तो आप तो बड़े खुश हो जाओगे ना कि सर ये तो बड़ा आसान सवाल था कि आपने जो है आंसर लिख के दे दिया और बताना है कि इस पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सो दैट्स वाई ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी आपको गिवन रहता है, उसको तो याद ही नहीं करना है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, कुछ नहीं है, एडिशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मल्टीप्लाई किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट
formula identity that we can have in algebra. Okay, so right now I am done with the theory part. Exercise 2.5 की अगर मैं बात करूं, so as I said most of you have done it, and the answers are correct obviously, but the point is, अच्छा ज़रा क्वेश्चन 16 का बताओ क्या आंसर होगा. What are the possible expressions for the dimension of the cuboids whose volumes are given below? इसके क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे, इसको आप होमवर्क करके मेरे को भेजो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने 15 तक होमवर्क दिया था, 16 मैंने नहीं दिया था. ठीक है. अच्छा, अब राइट नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि देखो मैं बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें कराता हूँ. ठीक है ना, मैं खाली एक्सरसाइज पे बिलीव नहीं करता. आई बिलीव कि वॉट एवर इज़ मैंशन इन द बुक इज़ एसेंशियल. एटलीस्ट आपके एन में जो भी सारी चीज़ें हैं दैट इज़ एसेंशियल, एंड सो इज़ समरी एज वेल. इसीलिए समरी भी एसेंशियल है. सो वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि टुडेज वर्क इज़ टू वॉच दिस वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस. जो मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, यू वॉच इट ट्वाइस. आज उसको 2 बार देखो. इन समरी को एज अ नोट प्रिपेयर करो और मेरे को सेंड करो. और बच्चा ये जो समरी है ना, ये समरी एज अ नोट आपके फेयर कॉपी में या आपके रफ कॉपी में नहीं लिखना है. इसको आपको समरी को लिखना है ऑन अ चार्ट पेपर, ऑन अ चार्ट पेपर. ठीक है. इफ़ यू कैन नॉट राइट इट ऑन अ चार्ट पेपर, हालांकि ऐसा कुछ इशू नहीं है, सारे के सारे लॉकडाउन ओपन है एंड द स्टेशनरी शॉप्स आर अवेलेबल. सो यू आर कंपल्ड एंड यू आर फोर्स्ड टू राइट इट ऑन द चार्ट पेपर एंड डेकोरेट इट प्रॉपरली. अच्छे से लिखो, अच्छे से डेकोरेट करो. वेर एवर यू स्टडी ट्राई टू पेस्ट इट. उसको किसी वॉल पे या कहीं उसको चिपकाओ. अगर इफ़ यू कैन नॉट पेस्ट इट देन आप इसको अपने पास रखो. मीन्स देख रह के देखने के लिए रखो, उसको याद मेमोराइज करने के लिए. ये समरी की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. वॉट एवर द क्वेश्चन फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक विल बी देयर, वो पहले इसको याद कर लो, अच्छे से नोट डेकोरेट कर लो. देन मैं आपको आपके किसी और बुक से भी इस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा. And I believe that after this the next chapter is coordinate geometry. I've not gone through it, but yeah, I think that the next chapter is coordinate geometry. So we'll again start it from the very basics. So just enjoy and do your work. That's all for the day, my dear students. Thanks a lot.